ابھی تک پاکستان میں ایک بھی کرونا وائرس کا مریض ثابت نہیں ہو سکا۔ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO بالکل یہ ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ کوئی بھی ملک چین میں اپنے جو ان کے لوگ ہیں یا شہری ہیں ان کو ایویکویٹ کرے۔ حکومت پاکستان کا چین میں صحت کی سہولیات پر بھروسہ، پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو فی الحال وہیں رہنے کا مشورہ۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کرونا وائرس کی بہترین تشخیص چین میں ہی ممکن ہے، وہاں پھنسے پاکستانیوں کو فوری واپس نہ لانا ان کے حق میں بہتر ہے۔ چین نے وائرس کو ووہان تک محدود رکھا ہے، اگر شہریوں کو نکالنا شروع کر دیا تو وائرس پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ چین کا کرونا وائرس کی پاکستان منتقلی روکنے کے لیے اہم قدم، مسافروں کی پاکستان واپسی مانیٹرنگ سے مشروط کر دی۔ پاکستان آنے والے مسافروں کی 2 ہفتے مانیٹرنگ کا فیصلہ، 14 روز میں علامات ظاہر نہ ہونے پر پاکستان آنے کا دیا جائے گا موقع۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے فلائٹس میں تاخیر سے پاکستانیوں کی مشکلات سے آگاہ ہیں، اقدامات کر رہے ہیں، طلبہ جلد خود کو سفارت خانے میں رجسٹر کرائیں۔ جدائی کی گھڑیاں آن پہنچیں، برطانیہ ایک دن بعد یورپ سے الگ ہو جائے گا۔ یورپی یونین نے بھی اداس گیتوں کے ساتھ علیحدگی کی منظوری دے دی۔ فیصلے کا احترام کرتے ہیں، برطانیہ کو بیک نہیں فرنٹ لائن پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لندن کے دورے پر آئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی گفتگو۔ یورپ والو الوداع، برطانوی شہریوں نے بریگزٹ کی تیاریاں شروع کر دی، جبکہ یورپی شہریوں کے الوداعی پیغامات آنے لگے۔ برطانوی شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ بریگزٹ کے بعد کاروباری حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ برطانوی کاروباری طبقہ فکر مند، سرمایہ کاروں نے نئے پروجیکٹس پر سرمایہ کاری روک دی۔ فیکٹری مالکان ہنرمند افرادی قوت کے حوالے سے پریشان، سب حالات بہتر ہونے کے منتظر۔ پاکستان سوسائٹی لندن کے زیر اہتمام دریائے تھیمز میں بوٹ پارٹی، مزیدار کھانے، شاندار موسیقی کا اہتمام۔ اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ دیگر ممالک کے طلباء نے بھی ثقافتی رنگوں کا بھرپور لطف اٹھایا۔ بھارت کے متنازع شہریت بل کے خلاف ترکی میں بھی آواز بلند۔ استنبول میں انسانی حقوق کے حوالے سے سیمینار، پاکستانی کمیونٹی، معروف دانشور شریک۔ مودی سرکار کے متنازع اقدامات کی سخت مذمت۔ مکہ مکرمہ میں JUI فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں تقریب، کہتے ہیں PTI حکومت کو ہٹانے کے لیے تحریک جاری ہے۔ اوورسیز پاکستانی نااہل حکومت سے نجات کے لیے دعا کریں۔ متحدہ عرب امارات نے ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ 1817 افراد نے طویل ترین مصافحہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ ون ورلڈ ون میسج کے ٹائٹل کے ساتھ بننے والا منفرد ریکارڈ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پاکستانی نژاد امریکی ناصر سلیم نیو یارک پولیس کے ڈپٹی چیف بن گئے۔ پولیس آفس میں کمانڈنگ آفیسر نے حلف لے کر بیج لگایا۔ قابل فخر لمحات کے دوران اوورسیز پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں موجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ ناصر، اسلام آباد ایئرپورٹ میں کرپشن کی کہانی۔ شہباز شریف کے لندن میں دھواں دار پریس کانفرنس۔ حکومت اتحادیوں کے لیے کمیٹیاں بن گئی۔ یہ سب شامل ہے پرائم ٹائم بلیٹن میں، مگر سب سے پہلے بات کرونا وائرس کی۔ حکومت پاکستان کا چین میں صحت کی سہولیات پر بھروسہ، پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو فی الحال وہیں رہنے کا مشورہ۔ معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا کہتے ہیں کرونا وائرس کی بہترین تشخیص چین میں ہی ممکن ہے، وہاں پھنسے پاکستانیوں کو فوری واپس نہ لانا ان کے حق میں بہتر ہے۔ تفصیلات حسین احمد کی اس رپورٹ میں۔
मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक मरीज भी कंफर्म नहीं। चीन के वुहान शहर में 4 पाकिस्तानी तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनका इलाज जारी है और चीन में रहने वाले एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी हमारी है। दफ्तर खारजा भी पाकिस्तानियों की तमाम जरूरियात को देख रहा है। 4 पाकिस्तानी जो हैं चाइना में, जो चारों के चारों तालिब इल्म हैं, उनके अंदर ये पॉजिटिव रिजल्ट आया था। हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी एम्बेसी बीजिंग में, ये लोग दिन रात हमारी जो चाइना में पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके साथ मुंसलिक हैं और उनको मुस्तकिल इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि चीनी हुकूमत ने शहर वुहान से किसी भी शख्स की मुंतकिली पर पाबंदी लगा रखी है, जबकि कौमी इदारा सेहत के मुताबिक चीन और वुहान में रहने वाले शख्स को किसी दूसरे मुल्क लाने की इजाजत नहीं दी जा रही और ये वजह दी जा रही है कि हम भी किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तान लाने की इजाजत नहीं देंगे, वरना वबा आग की तरह फैल जाएगी। हुकूमत चीन ने इस आउटब्रेक को वुहान तक महदूद किया हुआ है। अगर हम गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वहाँ से लोगों को निकालना शुरू कर दें तो ये वबा पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। मुआविन खसूसी ने मजीद बताया कि इस बीमारी की ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई खास इलाज है। सिर्फ चीन ही इस बीमारी का इलाज बेहतर कर सकता है। 15 ममालिक में ये वबा फैल चुकी है। आलमी इदारा सेहत ने भी हिदायत दी है कि चीन से अपने शहरियों को निकालने की जरूरत नहीं। चीन ने निहायत अच्छे तरीके से इस वायरस को वुहान तक महदूद कर रखा है। अगर शहरियों को चीन से निकालना शुरू कर दिया तो ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी इसका शिकार हो। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र चीन में सैकड़ों पाकिस्तानी फंस चुके हैं। तालिब इल्मों के वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों को परेशानी का सामना है। चीन ने पाकिस्तानियों की वापसी मॉनिटरिंग से मशरूत कर दी है। कोरोना वायरस चीन में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। ना चीन में रह सकते हैं, ना ही पाकिस्तान वापसी की राह हमवार हो सकी। सैकड़ों तालिब इल्मों समेत पाकिस्तानी शहरी चीन में फंस कर रह गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले तलबा चीनी हॉस्टल्स में महसूर होकर रह गए हैं। वालिदैन अपने बच्चों को परेशान देखकर गम से निढाल हैं। कैफुल वरा और बदरुद्दीन मुश्किलात का जिक्र भी कर चुके हैं। हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ये कह दिया है कि आप लोग रूम से भी ना निकले। हमारे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी है। सुपर मार्केट्स और वॉलमार्ट वगैरह में खाने पीने की कोई अशिया चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं है। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान एम्बेसी की बनती थी कि हमारे लिए कोई प्लेन या कुछ भी इधर बंदोबस्त करे। बहुत जलील हो गए इधर चाइना में। इधर हम हरबिन से आए, तकरीबन 6000 का हम मीटिंग कर। तलबा के वालिदैन ने हुकूमत से फौरी अपने बच्चों को वापस लाने की अपील की है। गवर्नमेंट को मैं अपील करती हूँ एक माँ की हैसियत से कि हमारे बच्चों की हेल्प की जाए, उनको खाने पीने के लिए कुछ दिया जाए और उन्हें जल्द से जल्द हमारे पास भेजा जाए। पाकिस्तानी हुकूमत और एम्बेसी वो हमसे ताउन नहीं कर रही। बाकी चाइना की हुकूमत ने जो है वो बिल्कुल ताउन कर रही है, यूनिवर्सिटी ताउन कर रही है। लियारी का अरसलान अमीन चीन से वापस पहुंच गया, जिस पर अहले खाना खुशी से निहाल हो गए। अरसलान अमीन वुहान सील होने से कबल शहर छोड़ चुका था। वुहान सिटी में जो पाकिस्तानी जो तादाद है वो है 559 टोटल। अच्छा, और उनमें से कितने पाकिस्तान आ चुके हैं अब तक? कितने लोग आए? उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आया। जो भी पाकिस्तान आ रहा है वो उन्होंने या तो पहले शहर छोड़ा हुआ था, जैसे जब ये शहर सील्ड हुआ है 23, उससे पहले इन्होंने शहर छोड़ा हुआ था और उनको भी बस जैसे मौका मिलता गया वो निकलते गए। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी अरोमची एयरपोर्ट पर फंस गए और शदीद सर्दी में रात एयरपोर्ट पर गुजारी। चीन ने वायरस की पाकिस्तान मुंतकिली रोकने के लिए मुसाफिरों की वापसी मॉनिटरिंग से मशरूत कर दी। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की 14 रोज मॉनिटरिंग की जाएगी। ये फैसला दोनों ममालिक की मुशावरत से हुआ। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज को टेस्ट क्लियर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि मुल्तान में CPEC पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। तर्जुमाने दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि चीन ने कोरोना वायरस के खदशे पर पाकिस्तानियों को सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद खुद को फौरी तौर पर रजिस्टर्ड कराएं। इतलात हमें मिल चुकी हैं कि फ़्लाइट जो है डिले हो गई है, इसलिए कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स एयरपोर्ट पे हैं। हमने चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से रब्ता किया है और उनकी अकोमोडेशन और उनकी वेलफेयर के लिए नुक्ता उठाया है और दरख्वास्त की है कि उनका ख्याल किया जाए।
आगे बढ़ते आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफ़ी और अखबार के खिलाफ लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। कहते हैं कि उनके खिलाफ केसेस और मन घड़त इल्जामात नैब और नियाजी का गठजोड़ है। तफसीलात लंदन से गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान की इज्जत बहाल करने के लिए अब कब लंदन की अदालतों में डेली मेल के सहाफ़ी डेविड रोज़ और मेरे खिलाफ हर्जाने का दावा दायर है? मैं वहाँ जाके खुद उस अदालत में आऊँगा और आपकी तमाम करप्शन के सबूत वहाँ बताऊँगा और ये भी साबित करूँगा कि इस स्टोरी के अंदर जो लिखा गया था ये सिर्फ 5% था, 95% ये बाकी रह गया। हुकूमत के इल्जामात पर शहबाज शरीफ का जवाबी इकदाम, जो कहा कर दिखाया। बरतानवी सहाफ़ी और अखबार के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में खुद पर लगे इल्जामात को मन घड़त करार दिया। ये सारी की सारी मन घड़त कहानी, डेफेमेटरी, फैब्रिकेटेड जो स्टोरी छापी गई और या छपवाई गई डेली मेल में पिछले साल, मैं बरतानिया की हाई कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के अपना के सहारे और फैक्ट्स के, हकायक के सहारे, फैक्ट्स, सॉलिड फैक्ट्स के सहारे और अल्लाह ताला के मेहरबानी से विद दीज वेरी एबल हैंड मैं आई हैव गॉन टू लंदन हाई कोर्ट। शहबाज शरीफ ने अपने खिलाफ केसेस को नैब और नियाजी का गठजोड़ करार दिया और कहा कि जब नैब की हिरासत में था उस वक्त केसेस दायर क्यों नहीं किए गए। नैब और नियाजी का जो अनहोली अलायंस है, जो गठजोड़ है, वो फिर मेरे खिलाफ आशियाना का रेफरेंस दाखिल न करते, जो कि ऑलरेडी फैसला तो नहीं आया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने जो मेरिट पे बेल ली है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुंह बोलता सबूत है, एक तमाचा है उनके मुंह पर। सुप्रीम कोर्ट में जब नैब मेरी बेल कैंसिल करवाने गया तो सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके कमेंट्स are there for everybody to see. शहबाज शरीफ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजाद अकबर के इल्जामात पर बात करने से इनकार कर दिया। शहजाद अकबर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, वो लगे रहते हैं 18 साल सवाल के जवाब दें फिलहाल पे। आज तमाम सवालों का जवाब मैंने दे दिया और चौधरी शुगर मिल ये एक कारोबारी अपना बिजनेस है, खानदानी बिजनेस है। और अगर मुझे बताएं कि खुदा न खास्ता अगर नैब नियाजी गठजोड़ को मियां नवाज शरीफ या उनके बच्चों के बारे में अल्लाह न करे तो एक ढेले की करप्शन मिल जाती, तो क्या फिर वो कभी चौधरी शुगर मिल या कभी ये रमजान शुगर मिल लाते कभी? अब वो कारोबार की तरफ इसलिए आए हैं कि कारोबार को तबाह करो, इनको बदनाम करो। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने भी केस की तफसीलात से आगाह किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर बरतानवी अखबार की स्टोरी दुरुस्त होती और कोई सबूत होते तो ये लोग नैब में जाते और पूरी दुनिया को बताते कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत ने इंतबाह किया है कि नवाज शरीफ 3 रोज में मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराएं, वरना हकायक की रोशनी में फैसला कर देंगे। पंजाब हुकूमत की नवाज शरीफ को 3 रोज की डेडलाइन, नून लीगी रहनुमाओं को मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने की हिदायत। हुकूमत ने नवाज शरीफ को मरासला अरसाल किया कि उनकी जानिब से प्लेटलेट्स की दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। नवाज शरीफ को भिजवाए गए मरासले के मुताबिक फराहम करदा रिपोर्ट्स पर पंजाब हुकूमत उनके बैरून मुल्क कयाम में तौसी का फैसला करेगी। नवाज शरीफ की 23 दिसंबर की रिपोर्ट्स महमूद अयाज की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड को भिजवाई गई। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की फराहम करदा दस्तावेजात को नाकाफी करार दिया था। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ख्वाजा हारिस को भी 6 जनवरी को रिपोर्ट्स फराहम करने की हिदायत की गई, मगर उन्होंने नवाज शरीफ और मुआलिद से राब्ता करने का कहा। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को इंतबाह किया है कि रिपोर्ट फराहम न करने की सूरत में मौजूदा हकायक की रोशनी में हुकूमत अपना फैसला कर देगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेग्जिट पर हतमी फैसला हो गया। कल बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। यूरोपीय ममालिक के शहरियों ने बरतानवी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्हें अलविदा पैगाम भी दिया। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। Arrivederci. Arrivederci, goodbye. Ciao, arrivederci. Attitude. Bye bye, my love. Viert euch, Engländer.
Kämpft uns wieder trotzdem im Urlaub und so weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Bye bye UK. Bye bye UK. Goodbye UK. Au revoir. See you. Bye bye. See you in England. Au revoir. Goedendag. Καλό Brexit, παιδιά. Αντίο. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Adiós chicos. ¿Qué le vamos a hacer? En otra ocasión. Hasta luego, Reino Unido. Nada, volver, yo qué sé. No somos tan distintos, no sé. Do zobaczenia, Wielka Brytania. Do zobaczenia, Wielka Brytanio. Trzymajcie się, obywatele Wielkiej Brytanii. Do zobaczenia, do widzenia, a nie żegnajcie. Never give up. Coś mamy powiedzieć, żegnaj. ایک طرف برطانیہ یورپ کو خدا حافظ کہنے جا رہا ہے تو دوسری جانب برطانوی کاروباری طبقہ بے یقینی کا شکار ہے. بریگزٹ کے بعد برطانوی قیادت کیا صورتحال اختیار کرے گی؟ اس حوالے سے کاروباری طبقہ خاصا پریشان دکھائی دیتا ہے. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. کئی برسوں سے جاری بریگزٹ کا معاملہ حل ہونے کو ہے جس سے شہری سکھ کا سانس لیں گے، لیکن برطانیہ کا کاروباری طبقہ بریگزٹ کے حوالے سے سخت پریشانی کا شکار ہے. برطانوی کاروباری شخصیات کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بریگزٹ کے بعد برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک اور دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات اور معاشی معاملات کیا صورتحال اختیار کریں گے. کچھ بزنس مین کہتے ہیں اس حوالے سے معلومات کا شدید فقدان ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کار مزید سرمایہ کاری سے ہچکچا رہے ہیں. جب تک صورتحال واضح نہیں ہوتی سرمایہ کاری کا عمل متاثر رہے گا. لندن کی ایک فیکٹری سالانہ 50,000 بائکس تیار کرتی ہے اور ای بائکس کی ایک بڑی مارکیٹ اس وقت یورپ ہے. اس کمپنی کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ آئندہ کیا صورتحال ہوگی کچھ معلوم نہیں. The biggest market for e-bikes is Europe, so for us it's very important that we are successful in Germany, Netherlands, France, Spain, Belgium, all the major markets. We wouldn't want, a disruption to the supply chain. میرالی کور ایک کمپنی کی سی ای او ہیں. انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی فیکٹری کے معمول کے کام کاج کے لیے ہنرمند افرادی قوت کہاں سے حاصل کریں گی. I really worry for us and any hospitality business that needs cleaners where we're going to find the people who want to do those jobs if we don't have talent coming from outside of the UK. دوسری جانب برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات کے معاملات 2020 میں طے پا جائیں گے. برطانیہ اور یورپ کل اپنی راہیں جدا کر لیں گے. بریگزٹ کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ اس حوالے سے سولیسٹر نجمہ علی نے لندن میں 92 نیوز کے بیورو چیف غلام حسین اوان کے ساتھ گفتگو کی ہے. مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں. غلام حسین اوان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل اب بالکل چند گھنٹے باقی ہیں جب برطانیہ یورپ سے راستے جدا کر لے گا اور بہت سارے کویشچنز ہیں لوگوں کے ذہن کے اندر کہ جو 31 جنوری کے بعد کیا ہوگا. اسی لیے آج ہم اپنے لنڈن اسٹوڈیو کے اندر سولیسٹر نجمہ علی کو دعوت دی ہے. ان سے کچھ سوالوں کے جواب ہم چاہیں گے کہ وہ دیں کہ نجمہ بیسیکلی جب 31 جنوری جو ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ چند گھنٹے باقی ہیں. السلام علیکم. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. Yes, we're leaving the European Union on the 31st of January, but we have a 11-month transition period. اس کے دوران جو ہے آپ یورپین نیشنلز یو کے میں آ سکتے ہیں اور اپنی فیملی ممبرز کو بھی ساتھ میں لے کر آ سکتے ہیں. نہیں اچھا، جب یہ لیکن ٹرانزیشن پیریڈ جو کہا جا رہا ہے 11 منتھ اور ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یورپین یونین سے ہم نکل رہے ہیں لیکن جو ہے اتنی جلدی یہ قانون نہیں بدل سکتے، تو اس لیے پہلے جو ہے ٹریزا مے نے 2 ایئرس کی اگریمنٹ کی تھی اور اب جو ہے یہ نئی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم 11 منتھس کے اندر فری موومنٹ کو روکنا چاہتے ہیں. بریکسٹ کا یہی بگ ایشو تھا کہ فری موومنٹ کو ہم روکنا چاہتے ہیں. تو 11 منتھ ٹرانزیشن پیریڈ میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 31 بریکسٹ کو جو ہے نا یورپین نیشنلز یو کے میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ غلط ہے. یو کے نیشنلز جو ہے اپ انٹل the 31st of December 2020 آ سکتے ہیں، تو یہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں. پاکستانی لوگوں جو یورپین نیشنلز پاکستانی اوریجن کے ہیں ان کے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ فرانس یا جرمنی یا اٹلی کے سٹیزن ہیں اور آپ یو کے میں آتے ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں کو پاکستان سے بلا سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں، اپنی بھائی یا بہن کو بلا سکتے ہیں، ایون اپنے کزنس کو بھی بلا سکتے ہیں اگر آپ فائنینشیل ڈپینڈنسی دکھا سکتے ہیں یا ایموشنل ڈپینڈنسی دکھا سکتے ہیں. تو میں لوگوں کو ارج کروں گی کہ اس کا فائدہ اٹھائیں. اچھا نجمہ، ایک ڈیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ 30 جون جو ہے وہ 2021 وہ بھی ایک ڈیڈ
डेडलाइन है, वो किस चीज़ की डेडलाइन है? ओके, ये जो है सेटल स्टेटस के लिए है। गवर्नमेंट ने कहा है जो यूरोपियन नेशनल्स यूके में रह रहे हैं 30 जून 2021 से पहले इनको सेटल या प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेटल स्टेटस में आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप 5 साल के लिए यूके में रह रहे हैं लॉफुली, और सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है, 5 साल की रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है। प्री सेटल स्टेटस में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप यूके में रह रहे हैं, तो मतलब आपको जो है ना यूके से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया बात, लेकिन ये बताएं कि 31 दिसंबर 2020 के बाद कितना का फ़र्क पड़ेगा कि जो यूरोपीय बाशिंदे लंदन में आना चाहते हैं या बरतानिया में? उसके बाद जो है हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद जो है लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है इनकी एग्रीमेंट को ये इनको एक्सटेंड करना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट का यही इरादा है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद यूरोपियन नेशनल्स नहीं आ सकते हैं। अगर आना चाहते हैं तो जो एग्जिस्टिंग यूके के रूल्स हैं उसके अंदर आना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इसका मतलब नजमा कि जो ब्रेक्जिट हो रहा है, यानी कि समय चंद घंटे बाकी हैं, तो उसके बाद भी जो यूरोप से लोग आना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो बरतानिया के अंदर सेटल हो सकते हैं? जो लोग 31 दिसंबर 2020 से पहले आते हैं उनके लिए पूरे ऑप्शंस ओपन है। और सेम ऑप्शन जो है बरतानवी शहरी जो है यूरोप के अंदर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी सेम ऑप्शन है? उनके लिए भी यही ऑप्शंस है। अच्छा, अब मुझे आखिरी सवाल का ये जवाब दे दें कि जो बोरिस जॉनसन का जो ब्रेक्जिट बिल था उसका मतलब है जब वो मंजूर हुआ है और थेरेसा मे के ब्रेक्जिट बिल के अंदर कितना फ़र्क था जिसकी वजह से इस वक्त लोग जो है इसको सेटिस्फाइड समझ रहे हैं? फ़र्क नहीं था, फ़र्क ये था कि जो है ना वो मेरे ओपिनियन में बोरिस जॉनसन पर्सुएसिव था, इसकी वजह से उसकी ब्रेक्सिट बिल पास हुआ है और थेरेसा मे का नहीं हुआ है। लेकिन एक और चीज़ है जो है ना यूरोपियन रेगुलेशन के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी भी है, तो जो यूरोपियन नेशनल्स है ये परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी में ये होता है कि आपको ब्रिटिश सेटलमेंट जल्दी मिल जाती है, आपको 1 साल के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं यूरोपियन नेशनल से ये भी कहूँगी कि अगर आप अपने रिलेटिव्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप ब्रिटिश नेशनैलिटी मत लें। बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान सोसाइटी लंदन के ज़ेर एहतमाम दरियाई थीम्स पर बरतानिया में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की जानिब से बोट पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें दीगर ममालिक के तलबा भी शरीक हुए। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सोसाइटी की जानिब से लंदन के दरियाई थीम्स में खूबसूरत बोट पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आला तालीम के लिए आने वाले तलबा को खुशामदीद कहा गया। पार्टी में दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तलबा को भी मदऊ किया गया था। इस मौके पर पाकिस्तान सोसाइटी के अरकान ने कहा, ऐसी पार्टियों की मदद से बैनुल अक़वामी सतह पर हम आहंगी और भाईचारे को फरोग मिलता है। तलबा व तालबात अपने ममालिक की सकाफत और सियासी और माशरती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल करते हैं। यहाँ पे बोट पार्टी अटेंड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और सारे भाइयों से मुलाकात करने का मौका मिला हुआ है और सारी सोसाइटी एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ पे इवेंट एंजॉय कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि हर साल ऐसे इवेंट्स हो कि हम लोग सारे अपनी शलवार कमीज पहन सकें और यहाँ पे एंजॉय कर सकें इवेंट। हम यहाँ पे सारे दोस्त डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। ये अच्छा इवेंट है, हम सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं, सब इकट्ठे होते हैं, दोस्त बनते हैं ज़्यादा। तलबा ने पाकिस्तानी खानों के मजे लूटने के बाद खूब भंगड़े डाले और मौज मस्ती की। ने कहा, ऐसी महफिल से जहां हम अपनी सकाफत को पेश करते हैं वहीं एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं। आज हम यहाँ पाकिस्तान का कल्चर और हमारी हेरिटेज प्रमोट कर रहे हैं। यूके में स्टूडेंट्स के लिए जो है एक पॉजिटिव इमेज के पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी जो नेगेटिव इमेज है वही सच नहीं है, एक हमारा पॉजिटिव बहुत कल्चर फ्रेंडली, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं हम। आज हमारा ईद है, मतलब कोई भी हमारा इवेंट है, कोई भी फेस्टिवल है, उसको हम यहाँ पे प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हर दुनिया के जहाँ से लोग आए हैं सबको हम दिखाते हैं हमारा कल्चर क्या है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसे इवेंट्स और भी होने चाहिए। रात गए जारी रहने वाली महफिल ने तलबा को तफरीह के साथ साथ एक दूसरे से मुतारिफ होने का मौका भी फराहम किया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी नासिर सलीम डिप्टी पुलिस चीफ न्यूयॉर्क बन गए। ऑक्सिलरी पुलिस ऑफिस में कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे हल्फ लिया और बैच लगाया। इस मौके पर पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में देखिए।
न्यू यॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ऑक्सिलरी में नासिर सलीम डिप्टी चीफ के ओहदे पर तरक्की पाने वाले पहले पाकिस्तानी और मुस्लिम अमेरिकन डिप्टी चीफ बन गए। इन्हें इंस्पेक्टर के ओहदे से डिप्टी चीफ के ओहदे पर तरक्की दी गई है। न्यू यॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में वॉलंटियर खिदमात अंजाम देने वाले ऑक्सिलरी पुलिस के डिपार्टमेंट से बरसा बरस से वाबस्ता और तवील खिदमात अंजाम देने वाले नासिर सलीम की तकरीब हल्फ बर्दारी ऑक्सिलरी पुलिस के हेड ऑफिस में मुनक्किद हुई, जहाँ उनकी कमांडिंग ऑफिसर डिप्टी इंस्पेक्टर रिया ने डिप्टी चीफ नासिर सलीम से उनके ओहदे का हल्फ लिया। I do hereby pledge and declare that I will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of New York, and that I will faithfully discharge the duties of an auxiliary deputy chief, the duties of an auxiliary deputy chief. Yes. According to the best of my ability. So help me God. इस मौका पर मौजूद न्यू यॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स कैप्टन अदील राना और लेफ्टिनेंट जैगम अब्बास को डिप्टी चीफ के बैज लगाए। तकरीब में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुकामी शख्सियात और अरकान के साथ साथ नासिर सलीम के ऑक्सिलरी पुलिसमैन साथियों ने भी शिरकत की। शुरका ने नासिर सलीम को उनकी कामयाबी और तरक्की पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने पूरी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है और कम्युनिटी को उन पर फ़ख्र है। डिप्टी चीफ नासिर सलीम जब तकरीब से खिताब करने आए तो फरते जज्बात से रो पड़े और खिताब मुकम्मल न कर सके। उन्होंने पुलिस हुक्काम और साथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने बेलौस खिदमत सरअंजाम दी हैं और इन्हें उन पर फ़ख्र है। तुर्की के साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम भारतीय शहरियत बिल और इंसानी हुकूक के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दानिश्वरों ने भी कसीर तादाद में तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में नाफिज किए जाने वाले शहरियत के मुतनाज़ कानून की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। इसी सिलसिले में इस्तांबुल के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमानों ने मोदी हुकूमत के जालमाना इक़दामात पर बहस की। पैनल में इब्ने खल्दून यूनिवर्सिटी के तारीख के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ओजानी और दानिश्वर डॉक्टर नदीम चौधरी शामिल थे, जबकि स्पीकर के फ़राइज़ इस्लान बालिजी ने सरअंजाम दिए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ओजानी का कहना था कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा जोग्राफिया रखता है और ये यकीनी बात है कि इतने बड़े जोग्राफिया पर एक से ज़्यादा सोच और मजहब के लोग मौजूद होते हैं, जिनके दरमियान इख्तलाफात होना फितरी बात है। Yabancıların vatandaş olabilmesine imkan tanıyan iki farklı gelişmeden bahsediyoruz. Bunlar birbirini destekleyen iki yasa çalışması. Anayasanın 370. maddesini feshederek Keşmir'i kendi toprağı olarak görmeye başladı. İlhak etti. Tabii bu aynı zamanda Pakistan gibi karşı taraftaki diğer bir nükleer gücün tepki vermesine yol açtı. JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का तूफान है। उन्होंने कहा कि मक्का में मुकीम पाकिस्तानी नाअहल हुकूमत से निजात के लिए दुआ करें। तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप मक्का मुकरमा के ज़ेर एहतमाम मकामी होटल में मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी अरब के तमाम शहरों से पार्टी जिम्मेदार और कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उन्होंने हुकूमत हटाने के लिए धरने के जरिए जो तहरीक शुरू की है वो जारी है। तहरीकें समंदर होती हैं जिनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने जद्दोजहद जारी रखनी है। हमने मुकम्मल पुरअमन लाखों अवाम पर मुश्तमिल कामयाब धरना देकर साबित किया है कि हम पुरअमन लोग हैं। इंसानियत का मंजर होता था, और फिर जब हमने इस्लामाबाद के लिए आज़ादी मार्च का फैसला किया तो मुल्क के हर कोने से लोग उमड़ उमड़ कर मुसाफिर आए। तारीख के तवील तरीन काफिले पाकिस्तान के सड़कों से गुजरे, इस्लामाबाद तक पहुंचे। एक तासुर आम था कि मजहबी लोग बड़े शिद्दत पसंद होते हैं,
मदारस में पढ़ने वाले लोगों को जैसे किस्म के पहाड़ी किस्म के लोग, मुआशरे के आदाब से लाबरद लोग, जैसे गंवार लोग तस्वुर किया जाता था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की में ओवरसीज का सबसे ज्यादा किरदार है। तकरीब से मुत्तहिदा मजलिस अमल के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद, मशहूर शायर सैयद सुलेमान गिलानी, साबिक वजीर बलूचिस्तान खलील सारंगजी, इंजीनियर अब्दुल सबूर ने भी शिरकत की। अदील रियाज, 92 न्यूज़, मक्का। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुनिया के तवील तरीन मुसाफे का आलमी रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक में उसका इंदराज करा लिया। आलमी रिकॉर्ड बनाने में 1817 अफराद ने हिस्सा लिया और तवील तरीन लाइन बनाकर मुसाफिया किया। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में बासलाहियत अफराद ने दुनिया को भाईचारे और अमन का पैगाम देने के साथ दुनिया के तवील तरीन मुसाफे का रिकॉर्ड भी बना डाला। ये इकदाम अबू ज़हबी पुलिस की यूथ काउंसिल की तरफ से किया गया था। ये इवेंट गुज़श्ता साल पोप फ्रांसिस और जामिया अल अज़हर के इमाम आज़म के तारीखी दौरा अरब अमारात के मौके पर तय पाने वाले बाहर दस्तावेज की सालगिरह की निस्बत से अरेंज किया था। ये इवेंट जनरल वुमेन यूनियन की चेयरवुमेन, खानदानी तरक्की की फाउंडेशन सुप्रीम चेयरवुमेन शेखा फातिमा बिनते मुबारक की सरपरस्ती में मुनक्कद हुआ। इस मौके पर मौजूद वजीर रवादारी निहान बिन मुबारक अल निहान ने इस तकरीब में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत की तारीफ की और मादरे कौम शेखा फातिमा के किरदार को भरपूर सराहा। उन्होंने कहा कि ये मौका रवादारी, बकाए बाहमी और इंसानी भलाई की शानदार मिसाल है। रवादारी और अमन का ये पैगाम दुनिया भर में फैलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात अमन और रवादारी की अलमबरदार शख्सियत शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल निहान के नक्शे कदम पर चलता रहेगा। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।